أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میری بہت ہی معزز بہنوں اور راہ حق کی بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھے جس عنوان پر بولنا ہے، جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، جب سے ہم نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس میں یہی درست دین ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں بتا دیں تو جب ہم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر ہوا کرتا تھا، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اور یہودیوں کے دور سے جب سے تھوڑا سا دنیا ایڈوانس ہوئی تو اس وقت سے لوگوں نے ایک کیلنڈر کو، اپنے کیلنڈر کو ترتیب دی کسی خاص موقع کو لے کر۔ جیسے ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں، یہودیوں کا جو سن ہے وہ 700 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، اور عیسائیوں کا جو سن جو ہے وہ سنچری ہے، اس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بگرامی سن کی ابتدا مہاراجہ بگرما جیت کو ساکھا قوم پر فتح حاصل ہونے کے واقعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سن ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ جس محرم الحرام، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اور پھر اسی مہینے کو سن ہجری کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس لیے اس کو چنا گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ اپنے آپ میں بہت بڑی جو ہے ایک تبدیلی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان قائم کیا ہے تب سے جو ہے وہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جو ہے قوم نے جب اپنے کیلنڈر کو ترتیب دیا ہو تو انہوں نے سال کا پہلا مہینے کو یہ محرم الحرام کو قرار دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے زمین پر جتنے کام ہوئے، جتنے کام ہوئے وہ محرم الحرام میں ہوئے، تبدیلی کے جتنے واقعات ہوئے وہ جو ہے محرم الحرام کو اس کو چنا گیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر تبدیلی کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی ماہ کو کائنات کی تخلیق ہوئی، اسی ماہ میں آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی ماہ میں آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
इसका ताज आदम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया पर फाइज किया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनसब खलील से सरफराज किया गया। नमरूद की आग को ठंडा करके आपको मनसब खलील पर सरफराज किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिली। हर तब्दीली, हर टर्निंग पॉइंट जो इस्लाम के लिए सबसे मौजू था, इसी महीने को चुना गया। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई। इसी रोज़ क़यामत आएगी। इसी माह मुहर्रम में अहले काबा इस माह मुहर्रम की अहमियत को समझते हुए अहले काबा खाने काबा के ग़िलाफ़ को चढ़ाते थे खाने काबा पर। और फिर हम देखते हैं कि इस्लाम को ज़मीन पर कायम करने के लिए इसी महीने को चुना गया। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना यही ज़मीन पर निज़ाम इस्लामी के क़याम का पहला महीना करार पाया। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना ही ज़मीन पर निज़ाम इस्लामी के क़याम का पहला महीना करार पाया। इब्तिदाए आफरीनिश से दुनिया में सारी इंसानियत देखती चली आ रही है कि इस्लाम की राह में जद्दोजहद के लिए ये महीना संगमेल की हैसियत रखता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम का ये दिन हमें एक अजीम कुर्बानी की भी याद दिलाता है। अजीम व कुर्बानी क्या है? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक बैनुल अक़वामी साजिश के नतीजे में इनको शहीद कर दिया जाता है। इसी तरह अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की खातिर खाक और खूर में तड़पा दिया जाता है। अहले इस्लाम को नए साल की मुबारकबाद देने के साथ हमें ये पैगाम भी देना चाहिए कि हम भी एक ज़िंदा जावेद तहज़ीब और तारीख़ के अमीन हैं। हमारा भी एक शानदार माजी और एक तशख़्ख़ुस है। ये वो चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में जब दाखिल होते हैं, जब सफ़र का आगाज़ करते हैं मदीना मुनव्वरा का, तो 8 रबीउल अव्वल को आपने इसकी इब्तिदा की और यही इस्लामी साल का पहला महीना करार पाया, जिसको सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में नाफिज़ किया और इसी साल इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा हुई। और जब सदी की इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा हुई तो ये कम मुहर्रम और जुमा का दिन था। हमारा एक शानदार माजी है, हमारा एक शानदार जो है पास्ट है। अगर हम मुहर्रम को याद करते हैं और मुहर्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन, हमको जद्दोजहद करने की एक बेहतरीन संगमेल हमें दिखता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद सदियां गुज़रती चली गई और ये सारी चीज़ें जिस निज़ाम इस्लामी के क़याम की जद्दोजहद की इब्तिदा हमें इस महीने में करनी चाहिए थी और उस पर फोकस देना चाहिए था, वो कहीं दूर से दूर, हमारा गोल दूर से दूर होता चला गया और हमें सिर्फ़ एक ही बात याद रही कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी महीने में, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सारे ख़ानदान को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सारे ख़ानदान को इसी महीने में शहीद कर दिया गया। यहीं से शहीद कर दिया गया। यही बात 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया। यही बात हमारे जहन में, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वालों ने भी यही बातें हमारे जहन में बैठाई, कभी मातम करके, कभी काले कपड़े पहन के, कभी नंगे पैर चल के, कभी जो है उनके कातिलों को बुरा भला कह के ये बात बैठाने की कोशिश की कि ये महीना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से मंसूब है। चूँकि हम कभी जानने की हमने कोशिश ही नहीं की कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में क्या पैगाम मुज़मिर है, क्या तालीम है। इसलिए हम भी जो हमें बताया गया वही हम समझते रहे
اور उन जो शहीद करने वाले थे उन्होंने उसके ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने उस दिन उसके बरख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने उस दिन खुशियाँ मनाई, उन्होंने उस दिन शिरनियाँ पकाई, उस दिन बाँटी। इस तरह की सारी चीज़ें होती चली आईं और हमारे जहनों में यही चीज़ें मुहर्रम अगर याद है तो अपनी उस यादगार शहादत की वजह से याद है जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे ख़ानदान को दी गई। बाकी सारी जद्दोजहद सारी कुर्बानियाँ हमें कुछ भी, क्योंकि हमें पढ़ने की कोई ना जुस्तजू थी और ना ही कोई मौका और ना ही कोई दिलचस्पी। हाँ, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह मुबारक की अहमियत और फ़जीलत चूँकि पता थी। आप जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो देखा कि वहाँ के यहूदी कबीले आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। तो आपने पूछा उनसे कि ये रोज़े क्यों रखते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जब अहले मक्का भी उस दिन निजात के तौर पर रोज़े रखते थे, वो इसलिए रखते थे कि अबरहा को जब अल्लाह ताला ने अबरहा की फ़ौज को जब ज़लील और रुस्वा किया तो वो भी मुहर्रम ही का दिन था, मुहर्रम ही का महीना था। तो उस वक्त जो है वो उस अबरहा की उससे फ़ौज से निजात पाने के उससे अहले मक्का भी उस दिन रोज़ा रखा करते थे कि हमें जो है अबरहा के जुल्म से अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला ने निजात दी। लेकिन जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ देखा कि जो है यहूदी भी रोज़े रखते हैं। तो आपने उनसे पूछा अहले मक्का से, अवस और खजरज के लोगों से कि ये रोज़े क्यों रखते हैं। लोगों ने बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये चूँकि ये दरियाए वो फ़िरौन के जुल्म से बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने निजात दी थी और फ़िरौन को गर्क किया था दरियाए नील में, इसलिए जो है ये उस माजी को की उस याद को ताज़ा करने के लिए ये जो है रोज़े रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वाले हम ज़्यादा हैं, हम उनसे ज़्यादा मुनासिबत रखते हैं, इसलिए आइंदा साल इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, 9-10 या 10-11। अब इस रोज़े की अहमियत और फ़जीलत मैं बता दूँ कि बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी रवायतें हमको मिलती हैं कि जिसमें ये फरमाया गया कि ये गुनाहों की माफ़ी के रोज़े हैं। यानी जो भी किसी रवायत में आता है कि पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और किसी रवायत में आता है कि अगले भी माफ़ हो जाते हैं। और मैंने जो जितनी हदीसें पढ़ी उसमें जो पिछले गुनाह माफ़ होने की जो बात है वो ज़्यादा समझ में आती है। अगले गुनाह होने की माफ़ी की गारंटी तो हमारी नीयतों, हमारे इरादों और हमारी ये गुनाह की संगीनी पर मुज़मिर है। आइंदा के जो गुनाह हैं वो आइंदा के तौबा करने के उस पर है ना। हम ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं करा सकते अल्लाह से कि मैंने फ़लाँ दिन रोज़ा रखा तो अब अल्लाह मेरे अब उसमें अल्लाह ताला मेरे आगे गुनाह माफ़ करेगा। बहरहाल रवायतें दोनों हैं कि अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बहरहाल जब ये रोज़े रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो ये वो रोज़ा था जो फ़राइज़ की हैसियत रखता था। लोग फ़र्ज़ के तौर पर इसको रखते थे, लेकिन जब माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो ये नफिल करार पाए। लेकिन नफिल में भी सबसे ज़्यादा अहमियत इन रोज़ों को हासिल है। आशूरा के रोज़े, अरफ़ा के रोज़े, जिसमें आशूरा का ज़्यादा फजीलत हासिल है। अब जब हम ये देखते हैं कि इस मुहर्रम, जैसे हम कहते हैं ना कि तारीख़ में और दिन में और माह में, साल में कुछ भी वो नहीं है, अहमियत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम माह मुहर्रम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक इस महीने की अहमियत और इस महीने को एकदम फोकस करके निज़ाम इस्लामी के क़याम का पहला महीना करार देने में अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस महीने को यूज़ किया, इस्तेमाल किया,
تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہے مطلب کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اس مہینے کے بارے میں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک یاد ہے یا ایک چیتاونی ہے، جیسے ہم بولنا چاہیں کہ ایک یاد اور چیتاونی ہے کہ دیکھو اس مہینے کو میں زمین پر جتنے بھی کام ہوئے، خاص طور سے نظام اسلامی کو قائم کرنے کے لیے اس مہینے کو چنا گیا. ایک بڑی جد و جہد کی ابتدا کی گئی، ایک بڑی جد و جہد کی ابتدا کی گئی. تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ ایک بڑی جد و جہد کی ابتدا کی گئی تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ تو پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اور یہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کی شہادت کس جو ہے جد و جہد کی جو ہے اسلامی نظام میں یہ کس طرح سے معاون و مددگار ہوتی. تب ہم جو ہے آتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، اپنی ہسٹری کو مطالعہ کرنا ہوگا. اور جو ہے ہمیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور یہ غم کا مہینہ اور غم کا وہ قرار دیتے ہیں، تو ہم جب غور کرتے ہیں کہ مقصد شہادت، تو حسین رضی اللہ عنہ نے تو ایسے ہی نہیں، اتنی عزیز ترین جان اپنی اس وقت ساری انسانیت کے لیے اور خاص طور سے سارے صحاباؤں کے گروپ کے لیے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. نہ ہی اتنی آسانی سے ان کی اپنی جانوں کو قربان کر دینا اتنا آسان تھا، اور نہ ہی سارے صحابہ اس بات کے لیے راضی ہوتے کہ آپ جو ہے اتنی آسانی سے اپنی جانیں اتنی معمولی مقصد کے لیے آپ قربان کر دیں. لیکن مقصد شہادت میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں تمام صحابہ کو اور خاص طور سے حسین رضی اللہ عنہ کو کی نگاہ میں یہ مقصد جو ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے مقصد شہادت دیکھیے، مقصد سے زیادہ جان سے زیادہ مقصد عدید ہو تو جانیں قربان کی جاتی. اتنی بڑی بڑی جنگوں میں اتنی بڑی بڑی زندگیاں، اتنی بڑی بڑی جانیں قربان ہوئیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو زندہ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر بن کے آپ اٹھے تھے. لیکن جنگ بدر میں جنگ احد میں آپ شہید کر دیے جاتے ہیں. جنگ احد میں آپ شہید کر دیے جاتے ہیں. یعنی مقصد جو ہے جان پر فوقیت لے جاتا ہے. مقصد کے لیے زندگیوں کو قربان کرنا، مقصد اگر عظیم تر ہو تو جانیں قربان کی جاتی ہیں، اور اگر جانیں قربان کی جاتی ہیں تو منصب شہادت کے منصب جلیلہ پر سرفراز ہوتی ہے. اگر مقصد عظیم نہ ہو تو جانیں قربان کر دینا بے معنی ہوتا ہے، بے مقصد ہوتا ہے. یہ وہ قربانی تھی جس کے لیے یہ وہ قربانی تھی کہ جس کو حسین رضی اللہ عنہ عزیز رکھتے تھے. لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کریں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ زاری کرنا، قاتلوں کو لعن طعن کر کے قیامت کے روز امام کے سامنے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے اس کے لیے اپنی جان قربان کی وہ کیا تھا؟ دین قائم تھا. پوری جس طرح سے صحابہ کی زندگی میں قائم تھا اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم تھا.
اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ پھر کس مقصد کے لیے؟ کیا مقصد تھا جس کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی عزیز ترین جان تو قربان ہی کی اور پورے خاندان کو اسی راہ میں شہید کروا دیا. وہ جو آپ کی جو بہت کہتے ہیں نا گہری نگاہ جو دیکھ رہی تھی، جو فراست والی نگاہ جس چیز کو دیکھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی. ریاست کے مزاج اور مقصد اور دستور کی تبدیلی. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی، یزید بہت برا آدمی تھا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. یزید اگر خلافت نافذ ہو تو ایک برے آدمی کا کسی منصب پر آ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے نا. اس لیے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کہ برا آدمی ہے اور برسط اقتدار آ جائے گا. یہ سیرت، اس کی سیرت جو ہے ایسی نہیں ہے جیسے اس کی سیرت اور شخصیت برے سے برا تصور جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جیسے آج کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، اس کے جیسا تو یزید تھا ہی، اس کی تعریف نہیں کریں گے، لیکن جس تبدیلی کی بنیاد رکھی گئی وہ تھی ریاست کے مزاج اور مقصد اور دستور کی تبدیلی. جب آپ نے دیکھا کہ یہ تبدیلی اگر آ گئی تو کیا کیا خرابیاں ریاست کے قیام میں، کیا کیا خرابیاں اور اس کے مزاج میں کیا کیا خرابیاں آ جائیں گی، تو آپ جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے. آپ بے چین ہو گئے. اور یہ جو تخت نشینی تھی دراصل اسی خرابی کی ابتدا ہوئی جو یزید کے ہاتھوں ہوئی، یعنی ولی عہدی کی جو ابتدا ہوئی، یعنی کہ باپ کے بعد بیٹا. یہ جو مزاج بنا، یہ پہلی خرابی کی ابتدا تھی اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج میں کہ باپ کے بعد بیٹا چاہے کسی قابل ہو یا نہ ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو، اسی خرابی کو حسین رضی اللہ عنہ نے بھاپ دیا اور آپ تن من دھن سے اپنی جان کو لڑا کر اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. تو حسین رضی اللہ عنہ کی باریک بھی نگاہ نے یہ دیکھ لیا، یہ پہچان لیا کہ انسانی بادشاہت کا آغاز جو ہے یہیں سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ بادشاہ ہے اور اسی کا بتایا ہوا قانون نافذ ہوگا، اسی کا ڈر لوگوں کے دلوں میں قائم ہوگا، اسی کی جو ہے اسی کے کی وہ فرما برداری لوگوں کو کرائی جائے گی. سردار یا خلیفہ تو قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ ایک بڑی خدمت اللہ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ دین کی ایک بڑی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے. اس کے وہ اپنی ریاست کے تمام بندگان خدا کو اللہ کے دین پر وہ پوری طرح سے قائم کرنے کے لیے قائم کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے. تو یہاں سے انسانی بادشاہت کی بادشاہی کا آغاز ہوا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب انسانی بادشاہت بادشاہی کا آغاز جب ہو جاتا ہے، یا جب انسان اپنے آپ کو ایک بادشاہ، یعنی ایک پورا کسی اس کے اکیلا و تر و تنہا وہ کسی ریاست کا ایک حاکم اور ایک مالک بن جاتا ہے، جس کے دلوں میں خوف خدا نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو اتنی بڑی زمین کا مختار کل اپنے آپ کو مان لے، تو وہ کس طرح کی غلامی وہ اپنے لیے، اپنے بندگان خدا کو
खुदा से अपने लिए करवाता है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो है वो छुट्टी करा दी जाती है, तातील हो जाती है, तातुल करा दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है, क्योंकि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किसी इंसानी बादशाही की उसमें कोई मकसद कोई जो है वो नहीं रखते, बल्कि वो अपनी इताअत कराता है, अपनी बंदगी कराता है, अपने हुक्म को नाफिज करता है। अमर बिल मारूफ उसके नज़दीक बेमाने होकर रह जाते हैं। ये वो चीज़ थी जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहचान लिया। अगर इंसानी बादशाहत की इब्तिदा हो गई, आगाज़ हो गया, तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इस जो है इंसानी बादशाहत में कायम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर वो बादशाह की जो है वो फर्माबरदारी लोग करेंगे, बादशाह के हुक्म को मानेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो बादशाह के सामने झुक भी जाएंगे। इस्लामी दस्तूर के बुनियादी उसूल क्या है, जिसको हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझा और उसके लिए आप खड़े हो गए। आज़ादाना इंतखाब इस्लामी दस्तूर की संग बुनियाद, लोगों की राय मालूम की जाए और जो तुम्हारे दरमियान में जो सबसे बेहतरीन शख्स हो, चुन कर इक़्तिदार में लाया जाए और उसके सुपुर्द किया जाए। बैत इक़्तिदार का नतीजा ये ना हो बल्कि उसका सबब हो। बैत जो है का नतीजा ना हो बल्कि उसका सबब हो। बैत हासिल होने में आदमी को अपनी किसी कोशिश या साजिश का दखल ना हो। लोग बैत करने या ना करने के मामले में पूरी तरह आज़ाद हों। जब तक किसी शख्स को बैत हासिल ना हो वो बरसरे इक़्तिदार ना आए, और जब लोगों का एतमाद उस पर से उठ जाए तो इक़्तिदार से चिमटा ना रहे। खुलफाए राशिदीन में हर एक इसी कायदे के मुताबिक बरसरे इक़्तिदार में आया था, लेकिन यहाँ अमीर माविया के मामले में पोजीशन मुस्तबा हो गई थी, इसलिए उनको खुलफाए राशिदीन में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन आखिरकार यजीद की वली अहदी व इनकलाबी कार्रवाई साबित हुई जिसने इस कायदे को उलट दिया। उसने ख़ानदानों को, मौरसी बादशाहों को का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके बाद आज तक फिर मुसलमानों को इंतखाबी खिलाफत की तरफ पलटना नसीब ना हो सका। तो ये वो तब्दीली थी। हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि ये क्या बात हुई। आज क्या हम दीन का काम नहीं कर रहे हैं? आज क्या हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर रहे हैं? इतनी बुरी जो है ज़मीन के जो निज़ाम है, सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, इतना बुरा है, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। मेरी अज़ीज़ बहनों, ये बात आप सोचिए, इस्लाम सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों में ही इस्लाम को नाफिज करना नहीं चाहता, बल्कि इस्लाम का निफाज जब तक रियासत पर ना हो, जब तक स्टेट पर ना हो, तब तक इस्लाम, कहते हैं ना कि पूरा का पूरा दीन हम नाफिज नहीं कर सके हैं। पूरा का पूरा दीन अगर नाफिज, जिसको हम कहते हैं पूरा दीन नाफिज करो, तो पूरे दीन का निफाज कि एक स्टेट पर पूरे निफाज का अमल ही है। एक स्टेट पर इस्लाम का क़याम जब तक ना हो तब तक हमारी ज़िम्मेदारी और हमारा जो है वो जवाबदेही ख़त्म नहीं होती। पूरे निज़ाम को बदल दो, पूरे सिस्टम को बदल दो। कॉलेज हो कि मंडी हो कि बाज़ार मईशत, थाना हो कचहरी हो कि ऐवान अदालत, लहराएंगे हम परचम तौकीर और रिसालत। तो इस तब्दीली इस्लाम इस तब्दीली का मुहाफिज है। फिर हम देखते हैं जब बादशाहत आ जाती है, इस्लाम का जो दूसरा उसूल है वो क्या है? दूसरा उसूल ये है कि शुराई निज़ाम हो। हुकूमत मशवरे से की जाए, चलाई जाए। हम देखते हैं कुरान में बार बार वशाबिरहुम फिल अम्र,
अमरुहुम शूरा बैनहुम, बादशाहत में ये शूरायत का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाता है, एक फ़र्द की हुक्मरानी होती है। तो इस तब्दीली को हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भाप लिया। इज़हार राय की आज़ादी जो हासिल होती है लोगों को, वो ख़त्म कर दी जाती है बादशाहत में। इसी चीज़ को हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भाप लिया और उसके लिए आपने पूरे ख़ानदान को लेकर, और चौथी जो तब्दीली होती है बादशाहत में वो ये होती है कि खुदा और खल्क के सामने जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो जाता है। बादशाह के सामने जवाबदेही के हिसाब को परवान चढ़ाया जाता है, बादशाह के खौफ को लोगों के दिलों में बैठाया जाता है। फिर और जो है पांचवी जो तब्दीली है बैतुल माल की, माल जो इमानत होता है किसी भी खलीफा के अंडर में, वो अपना माल समझा जाने लगता है और अपनी मर्ज़ी से उसको ख़र्च किया जाने लगता है। ये वो तब्दीलियाँ थीं जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस की। कानून की हुक्मरानी ख़त्म कर दी जाती है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म कर दी जाती है और फिर बादशाह की पूरी हुक्मरानी होती है। बादशाह जिसको कहता है इसका सर कलम कर दो, उसका कलम कर दिया जाता है, और जिसको कहता है छोड़ दो, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको माफ़ी मिल जाती है। तो यहाँ पर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मोमिनाना जो किरदार थे, उन्होंने जो ये 5 इस्लामी दस्तूर के ये उसूल था। फिर हम देखते हैं कि हुकूक और मरातिब के लिहाज से कामिल मसावात को ख़त्म कर दिया जाता है। नस्ल, वतन, ज़बान वगैरह का इम्तियाज़ फिर वो हावी हो जाता है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मोमिनाना किरदार ने इस तग़य्युर और तबद्दुल को फ़ौरन समझ लिया, और थोड़ी ही मुद्दत के अंदर हम देखते हैं कि आपने तो अपनी जान आफरी के सिपुर्द कर दी। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि इस तरह की तब्दीली अगर ज़मीन पर देखो, किसी ख़ित्ते में देखो, किसी रियासत में देखो, किसी स्टेट में देखो, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि तुम उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हुए खड़े हो जाओ, और जिस तरह की भी जद्दोजहद आप कर सकते हो उसको करो। हम ये देखते हैं कि मौलाना मौदूदी ने निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए, हुकूमत इलाहिया के क़याम के लिए जो पाकिस्तान हिजरत करके गए, तो आपने भरपूर जितनी भी उनकी जो वो थी, उन हुक्मरानों की जो कमज़ोरियाँ थीं, जो खामियाँ थीं, जो गलतियाँ थीं, उसकी निशानदेही की, और उसके लिए जितनी भी सज़ाएं और जितनी भी अज़ियतें दी गई आपको, आपने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन और ये बबागे दोहल की बात कही कि ये जो है मोहम्मद अरबी का मुल्क है, ये लेनिन और स्टालिन का मुल्क नहीं है। यहाँ पर हम निज़ाम मुस्तफ़ा के सिवा कोई भी सेकुलर निज़ाम या किसी भी दुनिया के निज़ाम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वो गलती थी, यही वो जो है चैलेंज था जिसने आपको तमाम उलमा ये बात कहते हैं कि आपने जिस दीन को ताज़ा किया लोगों के सामने, सियासी दीन को जो पेश किया, तो यही सबसे बड़ा आपका जो है वो था। और ये आप जो है बहुत मज़लूम है इस सरज़मीन पर कि आपकी इस जद्दोजहद को लोग नहीं मान रहे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी और उनकी जद्दोजहद, उनकी शहादत हमें ये पैगाम देती है कि हम जो है ज़मीन पर अल्लाह के लाए हुए दीन को कायम करने के लिए और उसमें किसी तरह की कोई तग़य्युर और तबद्दुल बर्दाश्त ना करें, और अल्लाह ताला के दीन के निज़ाम को कायम करने के लिए अपनी तमाम तन मन धन की बाजी लगा दें। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।